हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुखेजा ट्यूशनस। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਨਟੀਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਤੋਂ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਥਸ ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਲੈ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ SST ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਤੋਂ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ 20-30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ। synonyms, antonyms, prepositions, articles, conjunctions, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ। ਫਰਸਟ ਦੇਖੋ, mark the correct prepositions to be filled in the gaps. Mark the correct prepositions to be filled in the gaps. ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਨੇ preposition mark ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ fill in the blank ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ, you have no claim dash this post। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? you have no claim ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। you have no claim dash this post, for this post, of this post, on या to। you have no claim to this post। ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ? you have no claim to this post। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 9th 10th ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ 4 ਆਏਗਾ ਉਹ ਫੋਨ ਜਾਂ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਕਲੇਮ ਟੂ ਦਿਸ ਪੋਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ, ऑफ ਤੇ 4 ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਕਲੇਮ ਟੂ ਦਿਸ ਪੋਸਟ। ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। all of us rejoiced dash is brilliant success। all of us rejoiced dash is brilliant success। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ rejoiced ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤੇ? ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਕਸੈਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਐਟ, ਓਨ, ਫਰੋਮ, ਹੋਮ। ਉਸਦੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਕਸੈਸ ਤੇ, ਉਸਦੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਐਟ। all of us rejoiced at his brilliant success। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। I advised him much but dash no purpose। I advise him much but dash no purpose। I advised him much, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤਾ but dash no purpose, but dash no purpose। ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ? from ਆਊਗਾ, to ਆਊਗਾ, on ਆਊਗਾ, in ਆਊਗਾ। I advise him much but from no purpose। I advise him much but to no purpose। I advise him much but on no purpose। I advise him much but in no purpose। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ?
आई एडवाइज हिम मच बट ऑन नो परपस, इन नो परपस, ये तो नहीं बन रही, फॉर्म बना के देख लिया करो, बट फ्रॉम नो परपस या बट टू नो परपस, की आना चाहिए, की आना चाहिए स्टूडेंट्स? चलो एक अद्धा क्वेश्चन होमवर्क लिए भी देना चाहिए, ताही तुसी प्रैपोजिशंस नू सर्च करोगे। 2 क्वेश्चंस मैंने करवाते हैं, यह तुसी कल नू मैनू दसोगे कि इसका आंसर की आएगा। ठीक है जी, क्लीयर है स्टूडेंट्स? थोड़ी बहुत मेहनत सोनू भी करनी पड़ेगी, ताही यह प्रैक्टिस सैट लगाने का फायदा है। ठीक है जी, आओ हुण आपां ने करैक्ट सिनोनियम्स दसने हैं। मार्क द करैक्ट सिनोनियम। सिनोनियम का की मतलब हुंदा है? सिनोनियम का मतलब हुंदा है जी सेम मीनिंग। सिनोनियम का की मतलब हुंदा है? सेम मीनिंग। ठीक है, मैं सोनू ये पंजाबी च दस दी जाऊंगी, मतलब अपनी नोटबुक ते लिखते जाना, की पता इन्ना चो ही कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, डैफडल एदा की मतलब है जी जो स्लो हुंदा है, स्लो हुंदा है, होली चलदा है। ठीक है, होली। हरी काली दे विच, हरी का मतलब की हुंदा है? काली करना। समराइज किसी चीज नू संक्षिप्त करके लिखना, छोटा करके लिखना। लिंगर, लिंगर का मतलब भी की हुंदा है जी? स्लो। ठीक है, लिंगर का मतलब भी की हुंदा है? होली। रेक्टिफाई कोई चीज नू रेक्टिफाई करना, कोई चीज नू ठीक करना। ठीक है, तो एदा आंसर की आजूगा? एदा आंसर आजूगा जी लिंगर। क्यों आजूगा जी लिंगर? क्योंकि ऊपर वाले का मतलब भी स्लो है होली, ते लिंगर का मतलब भी होली है। हरी का मतलब हुंदा है तेजी करनी। समराइज का मतलब हुंदा है कुछ छोटा करके संक्षिप्त करके लिखना। रेक्टिफाई का मतलब हुंदा है ठीक करना। बचिया की लिंगर, लिंगर का मतलब भी की हुंदा है जी? स्लो ही हुंदा है, तो आंसर की आजूगा? स्लो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आजो जी, CALLOY कैलो, कैलो, कालो। ठीक है, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ है? जिस बंदे नू एक्सपीरियंस ना होवे। ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड बंदा होवे, जिनू एक्सपीरियंस ना होवे, इनएक्सपीरियंस्ड होवे, उसनू बोलते ने। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड तजर्बा। ठीक है, कैलो का की मतलब हुंदा है? जिनू तजर्बा ना होवे। एक्सपीरियंस्ड तजर्बा मतलब जिनू तजर्बा होवे, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड की हुंदा? जिनू तजर्बा होवे। इमैच्योर जेड़ा कि मैच्योरिटी वाली गल ही ना करे, इमैच्योर। ठीक है, अपनी उम्र तो घट गल मतलब ओह करे, ये भी इनएक्सपीरियंस नहीं। कालियोस ते क्रूअल। ठीक है, हुण इन्हां दा मतलब दसो जी, अगर किसी नू पता है। कालियोस ते क्रूअल एदा मतलब दसो जी। क्रूअल की हुंदा है? जो किसी ते की करदा है? फालतू दा टोर्चर करदा है। ठीक है, क्रूएलिटी दिखांदा है, किसी नू फिजिकल या मैंटली परेशान करदा है। ठीक है, वो हो गया जी क्रूअल। तो ये भी इनएक्सपीरियंस्ड वाली तो कोई गल नहीं हुई। कालोएस का की हुंदा जी? जेड़ा किसी दी केयर नहीं करता, नोट केयरिंग, जेड़ा किसी दी केयर नहीं करता। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। इमैच्योर मैं की दस्या सी? अपनी उम्र तो छोटी उम्र दियां गल्लां करे, मतलब वही हो गया इनएक्सपीरियंसड ही हो गया। ठीक है, जिन्हों कोई एक्सपीरियंस नहीं, ये हले मैच्योर ही नहीं होया हैगा, ये इनएक्सपीरियंसड है, तो ये की आ जाऊगा जी? अपना आंसर आ जाऊगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ਇਹਦਾ आंसर की आ जाऊगा अपना? इमैच्योर। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट? नेक्स्ट आ जाओ, कैलोरिक। ये अगर तुहानू पता होवे किसी चीज तो इरीटेशन होना। ठीक है, किसी चीज तो इरीटेशन होना उसनू बोलिया जाता है। ठीक है, तो देखो की आंसर आऊगा? इरीटेट होना। तो फर्स्ट ही देखो इरीटेबल, वही अपना आंसर बन गया। ठीक है जी, इरीटेबल ही अपना आंसर बन गया। ये भी क्रूअल आ गया। क्रूअल मैं हुणे दस के चुकी हाँ। इनडिसक्रिमिनेट, इनडिसक्रिमिनेट एदा की हुंदा जी? किसी नाल भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। ठीक है, इनडिसक्रिमिनेशन का की हुंदा जी? किसी नाल भेदभाव करना। एफल, एफेवल की हुंदा है? किसी नू प्लीजिंग करना। ठीक है, किसी दियां मिन्नतां करना लगा लो। ठीक है, किसी नू कुछ
कोई हाँ अफेबल, ठीक है, फैबल तो हो गया वीक, ठीक है, तो ਇਹਦਾ आंसर की आ गया जी इरीटेबल। इरीटेट होना किसी चीज तो, ठीक है, किसी चीज तो इरीटेट होना उसनू बोलिया जाता है, तो ਇਹਦਾ आंसर भी की आ जाऊगा जी इरीटेबल। क्लियर है? चलिए अगे। ये वर्ड्स तुसी नाल नाल लिखते जाना, ठीक है, वर्ड्स नू तुसी नाल नाल लिखते जाना है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब हुंदा भेदभाव करना, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब कि डिफरेंस ना वो ना करना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब हुंदा भेदभाव, उसका उल्ट हो गया, पर ओहदा आंसर नहीं सीगा, ठीक है, अगर किसी नू समझण दे विच गलती हुई होवे। अगे आ जाओ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। अगर तुहानू वर्ड्स पढ़ने औखे लगते हैं स्टूडेंट्स, तुसी इन्हां नू अपने दिमाग दे विच बिठा लो, ठीक है, की लिखिया होया है इनसोइनेस, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब हुंदा है किसी नाल कंसर्न ना होना, ठीक है, लैक ऑफ कंसर्न, की हुंदा है जी लैक ऑफ कंसर्न। फर्स्ट की है ਇਹਦਾ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म किसी नू क्रिटिसाइज करना, तू यह चीज नहीं कर सकता, किसी नू नीचा दिखाना लगा लो, ठीक है, तो ये तो वो नहीं हो सकता इमीडिएटली, जल्दी जल्दी या फटाफट, ये भी नहीं हो सकता। शार्प, शार्प मतलब तिखा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। नॉन चैलेंज, ठीक है, यह इसका है, ये भी इसका मतलब भी हुंदा जी लैक ऑफ कंसर्न, इसका मतलब भी हुंदा है लैक ऑफ कंसर्न। तो अपना आंसर की आ गया, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अगे। यह 7 क्वेश्चंस इंग्लिश के जिन्होंने विचों एक तुहानू होमवर्क दिता है, तो यह मीनिंग्स तुसी लर्न करके आने हैं, थोड़े तो पूछा जाऊगा आने वाले लैक्चर्स के विच, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगे। हुण कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर दे लेके आई हाँ, उन्होंने भी बड़े ही ध्यान नाल करना जी। देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, हेठ लिखिया विचों केड़ी हार्डवेयर दी एक उदाहरण नहीं है, हेठ लिखिया विचों केड़ी एक उदाहरण हार्डवेयर दी नहीं है। हार्डवेयर की हुंदा है? जो चीज़ां आपां नूं दिखदियां ने, जो चीज़ां आपां नूं पईयां दिखदियां ने, ठीक है। स्कैनर, स्कैनर तो हार्डवेयर है, आपां नूं दिखदा है स्कैनर, जिहदे नाल की सारी स्कैनिंग हुंदी है। मोनीटर जिहड़ी स्क्रीन हुंदी है वो भी आपां नूं दिखदी है, ठीक है जी। माउस, जिहदे नाल आपां माउस, ये भी आपां नूं पता ही है की हुंदा है, ठीक है। इंटरप्रेटर, ये की है जी, ये एक सॉफ्टवेयर है, तो तुहाडा आंसर की आ गया जी इंटरप्रेटर, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है। हुण देखो, ऑन अ CDRW1 कैन, ऑन अ CDRW उत्ते कोई की कर सकता है? जानकारी नूं पढ़ इत्थे लिख सकता है, सिर्फ जानकारी नूं पढ़ सकता है, सिर्फ जानकारी नूं लिख सकता है, जानकारी नूं पढ़ लिख ते दोबारा लिख सकता है। CD, ठीक है, यदि की फुल फॉर्म हुंदी है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। तो अपना आंसर की आ जाऊगा रीड राइट एंड रीराइट इंफॉर्मेशन, जानकारी नूं पढ़ लिख ते दोबारा लिख सकता है, ठीक है जी। पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, तो दोबारा भी लिखी जा सकती है। रीराइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क, क्लियर है जी, समझ आ रही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो की दिता होया इन्होंने, MS एक्सेल दे सैल विच, MS एक्सेल दे सैल विच एक फॉर्मूला दाखल करन तो पहला, MS एक्सेल दे सैल विच एक फॉर्मूला दाखल करन तो पहला केड़े ऑपरेटर नाल फॉर्मूला शुरू करना चाहिए है, ठीक है। केड़े ऑपरेटर नाल फॉर्मूला शुरू हुंदा है जी? ये फॉर्मूला शुरू हुंदा है इक्वल्स टू नाल, ये तुहानूं याद ही रखना पऊगा। जदों तुसीं MS एक्सेल दे विच कोई भी फॉर्मूला लिखना है तां ओह केड़े ऑपरेटर नाल शुरू हुंदा है? इक्वल टू नाल शुरू हुंदा है, ठीक है।
What does CPU stand for? CPU ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज बैकअप इन कंप्यूटर रेफरेंस। ठीक है, व्हाट इज बैकअप कंप्यूटर दे संदर्भ दे विच बैकअप की है। ठीक है, कंप्यूटर रेफरेंस दे विच बैकअप की है। अपने नैटवर्क विचों होर भाग शामिल करना, अपने नैटवर्क दे विचों होर भाग शामिल करना मतलब होर चीज़ां नूं ऐड करना, मूल स्रोत तो वखरे ठिकाने ते नकल करके डाटा दी रखिया करना, नवे डाटा तो पुराना डाटा नू फिल्टर करना, टेप उत्ते डाटा नू एक्सेस करना। की होगा जी, बैकअप आपां फोन दे विच भी लिन्ने आ, ओही सेम कंप्यूटर दे विच भी हुंदे। आपां की करदे आ, आप अपने डाटा नू प्रोटेक्ट करते हैं किमें? बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन। मूल स्रोत तो वक्रे ठिकाने ते नकल करके डाटा दा रखिया करते हैं ताकि कलू अपने कंप्यूटर नू कुछ भी हुंदा है अपना डाटा सेव रहे। ठीक है जी, नैक्सट आ जो लेजर प्रिंटर दी गति नू मापन लई इकाई केड़ी वरती जाती है? PPM। इन्हां ने 4 दित्तियां जी, CPM, DPI, PPM ते बिट BIT। आंसर की आऊगा जी? PPM। आंसर आऊगा जी PPM। ठीक है, ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, CPM ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, PPM ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, DPI ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, MICR स्टैंड फॉर। MICR दी फुल फॉर्म की है? MICR दी फुल फॉर्म हैगी है जी मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन इन्होंने दिता है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन रीजन, मैग्नेटिक इंक कंप्यूटर रिकॉर्ड, माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग। की आऊगा? मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, वैबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड इट्स। एक वैबसाइट का जिहड़ा मुख्य पेज हुंदा है उसनूं की कहा जाता है? होम पेज, ब्राउजर पेज, खोज पेज या बुकमार्क, उन्होंने कहा जाता है जी होम पेज। एक वैबसाइट का जिहड़ा मुख्य पेज हुंदा है उन्होंने की कहा जाता है? उन्होंने कहा जाता है होम पेज। क्लीयर है? चलिए जी अगे अगे आओ। शॉर्टकट कीज भी तुहानूं सारियां थ्योरी क्लासिस दे विच करवाइयां जाणगियां। MS वर्ड विच शॉर्टकट की Ctrl+F दी वरतों कीती जांदी है। क्यों कीती जांदी है MS वर्ड दे विच Ctrl+F दी वरतों? व्यू डॉक्यूमेंट इन फुल व्यू, पूरे दृश्य विच दस्तावेज नूं वेखण लई। ओपन द फार्मूला डायलॉग बॉक्स, फार्मूला डायलॉग बॉक्स नूं खोलण लई। फाइल सेव करन लई, लभो अते बदलो डायलॉग बॉक्स नूं खोलण लई। तां Ctrl+F कादे लई कीता जांदा है जी? ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ठीक है, कोई भी अगर अपने कोल शीट हुंदी है, अगर आपां ने उस चों किसी बच्चे का पर्टिकुलर नाम लभना हुंदा है, आपां Ctrl+F करदे हां, उत्थे उस बच्चे का नाम भरदे हां ते आपां नूं बच्चे का नाम मिल जांदा है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपने वर्ड डॉक्यूमेंट ते लभनी है तो आप किमें लभदे हैं? Ctrl+F करके। क्लीयर है जी? अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। हेठ लिखिया विचों केड़ी एक वड्डी मात्रा विच, इन्होंने कहा भी जिहड़ियां नीचे लिखिया हुई हैं, केड़ी एक वड्डी मात्रा विच फाइलां नूं थोड़ी जही स्टोरेज स्पेस विच स्टोर करन लई वरती जा सकती है। फाइल अनुकूलता, फाइल नकल, फाइल पढ़ना, फाइल कंप्रेशन। तो आंसर की आ जाऊगा जी फाइल संकुचन। ठीक है, मतलब फाइल कंप्रेस करके आपां उसनूं अगर सेव करांगे तां वो घट स्टोरेज स्टोरेज स्पेस दे विच स्टोर हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम। इन्हां चों केड़ा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क हैगी है जी, फ्लैश ड्राइव हैगी है जी, DVD हैगी है जी, कीबोर्ड नहीं हैगा। तो आंसर की आ जाओ कीबोर्ड नाल तां आपां की करदे हां स्टूडेंट्स? कीबोर्ड नाल तां आपां टाइप करदे हां। ठीक है, नैक्सट आओ जी,
ऑन एन इंटरनेट। अगर आप कंप्यूटर्स की गल करिए इंटरनेट तो किवें आइडेंटिफाई होंदे हैं, इंटरनेटां उत्ते कंप्यूटरां नूं डैश द्वारा पहचानिया जाता है। किवें पहचानिया जाता है? आईपी एड्रैस, स्ट्रीट एड्रैस, ईमेल एड्रैस, वैब एड्रैस, आईपी एड्रैस नाल। ठीक है, हर एक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रैस हुंदा है जिस दे नाल कि उन्हां नूं पहचानिया जाता है। हुण इन्हां ने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हेठ लिखियां विचों किहड़ी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लई एक भाषा नहीं है? विंडोज, पास्कल, बेसिक या कबोल, COBOL। ठीक है, तो आंसर की आ जाऊगा विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी, जिमें कि विंडोज 8 होगी, विंडो 10 होगी, यह कोई भाषा नहीं है। समझ गए स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आ जाओ, जस्ट अ मिनट। बच्चे नोट डाउन करते जाना नाल नाल, जो भी सोनू लगे कि सोनू नहीं आंदा, ठीक है, उन्होंने नाल नाल अपना नोट डाउन करते जाना। लास्ट क्वेश्चन ते आ जाओ जी। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। जेड़ा कि सिंबल ब्लिंक कर रहा हुंदा है, जिमें कि आ देखो, ठीक है, इनू की कहा जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन उत्ते चपकदे निशान नू की कहा जाता है? माउस, लोगो, कर्सर या हथेली? की कहा जाता है जी? कर्सर कहा जाता है। की कहा जाता है? कर्सर कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपां कल। अज लई इन्ने ही क्वेश्चन सी। आई होप तुहानू सारिआं नू अच्छे लगे होणगे। ठीक है, कल मैं नवे क्वेश्चंस के नाल प्रैक्टिस सेट 2 दे विच आऊंगी। आपां मिलते हैं कल नू। ये क्वेश्चंस नू बहुत चंगी तरह कर लियो। ठीक है, सारे एग्जाम्स लई ही इंपोर्टेंट है, सारे एग्जाम्स लई ही ये क्वेश्चंस